Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to discuss the difference in between RS flip-flop using NOR gate and RS flip-flop using NAND gate. Last video lecture we discussed the detailed idea of RS flip-flop using NAND gate and NOR gate. Before coming to this video lecture, first watch that video lecture and then come back to this video lecture. Then only you will clear the difference in between the RS flip-flop using NOR gate and RS flip-flop using NAND gate. This is a simple logic diagram of RS flip-flop using NOR gate. We guys are required two NOR gate. One of the input to the first NOR gate is R and one of the input to the second NOR gate is S. R is stand for reset, S is stand for set. And the second input is connected to the output. This is a simple representation of a RS flip-flop using NOR gate. Or you can say that for both the cases, RS flip-flop using NOR gate and RS flip-flop using NAND gate, this is a simple symbol representation. You can represent this logic diagram symbolically in a such a way. There are two input S and R and two output. Always the output should be complementary, therefore the output is represented as Q and Q bar. तो इस तरीके से आप लोग symbolically RS flip-flop को represent कर सकते हो. In some book, this RS flip-flop is also called as a RS latch. Okay, so RS latch, it means it having a two input and two output, it store a one bit of information. This is a truth table of RS flip-flop using NOR gate. As there are a two input, four combination we can provide to the RS flip-flop. The four combinations are 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. When we guys are providing the first combination as a 0 0, your next output of the flip-flop is equal to the previous output. प्रीवियसली फ्लिप फ्लॉप में कुछ तो भी स्टोर होगा, वही आपका नेक्स्ट आउटपुट रहेगा. प्रीवियसली फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर होगा तो नेक्स्ट आउटपुट इज ऑल्सो कम आउट टू बी 0 व्हेन R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0. प्रीवियस आउटपुट 1 स्टोर होगा तो नेक्स्ट आउटपुट भी 1 ही आएगा जब आप लोग क्या रखोगे, R इज इक्वल टू 0 रखोगे, S इज इक्वल टू 0 रखोगे, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ नो चेंज. कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. प्रीवियसली भी 0 था, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, या प्रीवियसली भी 1 था, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है. और यू कैन से दैट जो नेक्स्ट स्टेट है वो लास्ट स्टेट के बराबर है, तो एक्शन कौन सी परफॉर्म हो रही है, लास्ट स्टेट परफॉर्म हो रही है. इसी को ही बोला जाता है किसी किसी बुक में मेमोरी. जो इंफॉर्मेशन पहले स्टोर थी उसी को ही वो स्टोर रख रहा है. द नेक्स्ट स्टेट R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1. जब S इज इक्वल टू 1 रहता है, इफ आई कंसिडर कि प्रीवियसली 0 स्टोर है बट वो नेक्स्ट स्टेट को 1 कर देता है. इफ आई कंसिडर कि प्रीवियसली 1 स्टोर है तो वो उसको 1 ही रखता है. तो इनडायरेक्टली हमेशा वो आउटपुट 1 दे रहा है एंड एक्शन कौन सी परफॉर्म हो रही है, तो Qn+1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों, आपकी 1 ही आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेट कंडीशन. सिंपली आप लोग बोल सकते हो कि प्रीवियसली कुछ भी स्टोर रहे, 0 स्टोर रहे, 1 स्टोर रहे, हमेशा जब आप लोग S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेंगी, Qn+1 1 मिलेंगी. उसको बोला जाता है कि फ्लिप फ्लॉप सेट हुआ है. The next state is the R is equal to 1, S is equal to 0. When R is equal to 1, whatever be the previous output stored in the flip-flop, it will change that output to 0 always. 0 में चेंज करता है, मतलब नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, एंड इन दैट केस यू कैन से दैट फ्लिप फ्लॉप रीसेट. फ्लिप फ्लॉप क्या हुआ है, रीसेट हुआ है. तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जब R इज इक्वल टू 1 रहेगा तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा. जब S इज इक्वल टू 1 रहेगा तो फ्लिप फ्लॉप सेट होगा. S1 है, फ्लिप फ्लॉप सेट हुआ. R1 है, फ्लिप फ्लॉप रीसेट हुआ. When both are 1 1, this is the invalid condition in case of a flip flop because you will get the same output. Q is equal to 0 as well as Q bar is equal to 0, but it is not possible in case of a flip flop. आउटपुट हमेशा सेम नहीं रह सकते. आउटपुट हमें कैसे चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए. इसलिए इन केस ऑफ अ NOR लैच जब R इज इक्वल टू 1 रहता है, S इज इक्वल टू 1 रहता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ फॉरबिडन कंडीशन, रेसिंग कंडीशन. नाउ लेट्स कम टू द RS flip flop using NAND gate. The same thing is there
in a logic diagram just we exchange the NOR gate by NAND gate. अभी हमने कौन सा गेट यूज़ किया है, तो NAND गेट यूज़ किया है. जो भी कनेक्शन थे जैसे थे वैसे ही है. ऊपर R नीचे S, देयर इज़ अ क्रॉस कपल कनेक्शन इज देयर. सिंबल इज अगेन सेम, आप लोग को ऑब्जर्व कर सकते हो, हमेशा याद रखना है दिस इज द सिंबल ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट एज वेल एज द NOR गेट. ट्रूथ टेबल की तरफ आते हैं. तो व्हाट यू ऑब्जर्व, दिस टू कंडीशंस आर प्रिटी मच सिमिलर. When S is equal to 1, flip-flop gets set. When R is equal to 1, flip-flop get reset. ओके, S जब 1 रहेगा तो फ्लिप फ्लॉप सेट करेगा, R इज इक्वल टू 1 रहेगा तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट करेगा. बट जब इन केस ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट, R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0, दिस इज द इनवैलिड कंडीशन, फॉरबिडन कंडीशन, रेसिंग कंडीशन. दैट मीन्स यू विल गेट द सेम आउटपुट. आप लोगों को कौन से दो आउटपुट सेम मिलेंगे, Q भी 1 मिलेगा, Q बार भी 1 मिलेगा. ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो लेक्चर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आउटपुट सेम मिल रहे हैं, आउटपुट सेम नहीं रह सकते हैं. तो इन केस ऑफ योर RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट, जब R इज इक्वल टू 0 रहता है, S इज इक्वल टू 0 रहता है, तो दैट वन इज द इनवैलिड कंडीशन, रेसिंग कंडीशन, फॉरबिडन कंडीशन. When R is equal to 1, S is equal to 1, that one is the memory condition in case of a RS flip flop using NAND gate. तो यहाँ पे आप लोग ट्रूथ टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो कंडीशन एक्सचेंज हो चुकी है. फॉर 0 0 इन केस ऑफ अ NOR गेट, दैट वन इज द मेमोरी कंडीशन. बट NAND गेट में मेमोरी कंडीशन कब मिल रही है, फॉर 1 1. NOR गेट में फॉरबिडन कंडीशन कब मिलेगी, जब 1 1 रखोगे, R इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1. NAND गेट में फॉरबिडन कंडीशन कब मिल रही है, जब 0 0 रखोगे, R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0, यू विल गेट द फॉरबिडन कंडीशन, रेसिंग कंडीशन, इनवैलिड कंडीशन. सो दिस 2 पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ये 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रख लिया कि थोड़ा सा ट्रूथ टेबल में चेंजेस है. दोनों के लिए भी ट्रूथ टेबल सेम नहीं है. किस में, तो RS लैच में. RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट, RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट. जो फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन है वो दोनों में एक्सचेंज हुई है. तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है. बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप. उसमें थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है. क्या चेंजेस है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. तो होप सो RS लैच में डिफरेंस क्या है वो क्लियर हो गया होगा आपको. यू हैव टू क्लियर दिस ट्रूथ टेबल. आपको ये ट्रूथ टेबल क्लियर हो गया है तो आप लोग आगे जाके अच्छे से क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप को पढ़ सकते हो. मैंने पहले ही बोला गया है RS फ्लिप फ्लॉप इज़ वन ऑफ द बेसिक फ्लिप फ्लॉप. इफ़ यू गाइज आर क्लियर विद द RS फ्लिप फ्लॉप, ऑल अदर फ्लिप फ्लॉप्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. तो आप RS फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से पढ़े, बाकी फ्लिप फ्लॉप आपको बहुत आसान जाएंगे. होप सो दिस वीडियो लेक्चर इज़ लिटिल बिट हेल्पफुल टू यू. आपने ये भी वीडियो लेक्चर देख लिया है एग्जाम टाइम पे तो आप लोगों को शॉर्टकट में बहुत अच्छी आइडिया मिल जाएंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.